हेलो। हेलो, सुनाई पड़ रहा है? So let us start today's topic, Laplace transform in other parts. So we share the screen. Some problem we discuss. Find the Laplace transform of functions of t defined as functions of t we have t by tau when 0, t tau 1 when t is greater than tau. Laplace transform functions of t equal to 0 to infinite exponential minus st ft dt. However, functions of t can be expressed in the terms of two array, that is limit has 0 to tau and tau to infinite. So we have so we have the integration 0 to tau and tau to infinite. So functions of t we have t by tau and functions of t we have 1. That can be expressed in terms of integration by parts. So we have either not. Anyone student? Tell me anyone. No. Anyone student? Tell me. किसी को पूछना है, किसी को बोलना है? प्रखर गुप्ता, कन्हई मिश्रा, यस सर। इधर है कि नहीं बोलो? सर बाई पार्ट्स लगा के उसको क्लियर किए, ये कंप्लीट किया ना। हाँ हाँ बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, फंक्शंस ऑफ टू वी हैव, तो दैट्स विल हैव द रिजल्ट क्लियर है ना? नाउ नेक्स्ट properties, transform of integration says that is a functions of t equal to f bar s, then Laplace transform of 0 to t f u du 1 by s f bar s. ठीक है, ये दिया हुआ है. Evaluate the problem Laplace transform 0 to t exponential t sin t by t dt. According to problem, we solve it by using the division of t. So properties of division of t we have Laplace transform functions of t equal to f bar s. Then Laplace transform functions of t by t equal to
s to infinite f bar s ds, provided the integral exists. So according to the question, so Laplace transform of sin of t equal to 1 by s equals 1 and Laplace transform sin t by t equal to क्या होगा s to infinite 1 by s plus 1 ds. ठीक है, so tan inverse s हो जाएगा ये s to infinite tan inverse infinite minus tan inverse s equal to क्या होगा pi by 2 minus tan inverse s, so cot inverse s. ठीक है, Laplace transform exponential of t sin t by t equal to cot inverse s minus a 1. ठीक है, cot inverse s minus 1. Thus Laplace transform 0 to 2 exponential of t sin t d by t equal to 1 by s x cot inverse s minus a. ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी का आधार ट्रांसफॉर्म पे इंटीग्रेशन का आधार पर ये प्रॉपर्टी क्लियर है. क्लियर कि नहीं बोलो एनीवन स्टूडेंट? बोलो. क्लियर है एनीवन स्टूडेंट? टेल मी. So next is transform of derivative. If functions of t be continuous and Laplace transform functions of t equal to f bar s, then Laplace transform functions of t equal to s f bar s minus f0. और इसको हम लोग डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये दिया हुआ है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ऐसा दिखाना पड़ेगा ना. ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है, ये फॉर्मूला जो आ रहा है Laplace transform functions of dash t equal to s f bar s minus f0 कैसे आ रहा है. तो Laplace of x t equal to we know that, ये तो हम लोग जानते ही हैं. ठीक है, आफ्टर दैट f dash t जहां फंक्शंस ऑफ t और डेरिवेटिव कर दिया तो क्या होगा सेम एटिटीज वी हैव. ठीक है, इसको हम बाय पार्ट्स करेंगे. फर्स्ट फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस t और सेकंड फंक्शन इज f dash t. सो वी हैव बाय पार्ट्स. फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव को इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा फंक्शंस ऑफ t हो जाएगा. उसी प्रकार ये होगा. देखो ये लाइन क्लियर है कि नहीं बोलो एनीवन स्टूडेंट? इधर है एनीवन स्टूडेंट? वी हैव
ठीक है, anyone student? Now assume function t equal to be such that limit n t to n next point exponential minus st f t equal to 0. Thus, this condition is satisfied. Function t is said to be exponential order s. So Laplace transform f dash t equal to f bar s minus f0. Clear है anyone student? बोलो। दीपक राय, धनेश्वर महतो, किधर है? Anyone student? अनंत कुमार प्रधान। हेलो सर। बोलो। सर बोल रहे थे कि अगर इसी को हम लोग गूगल ये माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड पे करते ना तो वो ज्यादा समझ में आता है। अगर डायरेक्ट सॉल्यूशन करते जाते जैसे पहले उज्जवल सर करते थे उससे ज्यादा क्लियर हो जाता था। क्योंकि सर ऐसे क्या होता है ना कि जैसे ऐसे सॉल्यूशंस बना हुआ है तो आदमी उनमें उतना क्लियरिटी नहीं आ पाता, बट वही जो व्हाइट बोर्ड पे आप जैसे जैसे सॉल्यूशन करते जाते हैं तो हम लोग भी उसी टाइप से स्टेप बाय करते जाते हैं तो वो ज्यादा क्लियर हो जाता है। तो अगर वो हो पाता सर तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता। समझ में आ रहा है जो तुम बोल रहे हो? यस सर। समझ में आ रहा है तुम क्या बोलना चाह रहे हो? यस सर, यस सर, वही। देखते हैं किसका क्या उपाय क्या है। तुम लोग ऑफलाइन काफी शुरू किए, दिक्कत तो यस सर, शुरू होगा ऑफलाइन ही। स्टार्ट हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है सर। ठीक है, देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं। जी। अब इसको देखो क्या है, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है सर। एनीवन स्टूडेंट नेक्स्ट? बोलो। And next, anyone student? So next is Laplace transform of derivative nth order. So f dash t को हम लोग nth order में डेरिवेटिव करेंगे तो कैसे निकलेगा? देखो nth order का डेरिवेटिव हमारा होता है s to the power n fs minus s square s to the power n minus 1 f0 minus s to the power n minus 2 f dash 0 up minus up to s to the f to the power n minus 1 0. So इस डेरिवेटिव फॉर्मूला हम लोग के पास ऑलरेडी है। लाप्लास f dash t इक्वल टू ऑलरेडी है, replacing ft by f dash t and f dash t by f double dash t इन इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर दो। जहां डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव को सेकंड डेरिवेटिव देगा, अगर डेरिवेटिव नहीं है तो फर्स्ट डेरिवेटिव ये मिलेगा तुमको, ये मिलेगा तुमको एट इट इज f dash t इक्वल टू l f t माइनस f0 माइनस f dash 0। ठीक है, s स्क्वायर f लाप्लास f t माइनस s f0 माइनस f dash 0
ये एक्सपेंड कर दिया, सेकंड डेरिवेटिव निकल जाएगा, हर डेरिवेटिव पे तुम्हारा यही निकलेगा। उसका ऐप एंड टू द पावर टी nth ऑर्डर सिमिलरली कंटिन्यू प्रोसेस वी हैव, ये मिलेगा तुमको। इधर है अनंतकाल प्रधान, प्रखर गुप्ता, प्रियराज पांडे, जस कुमार साहू, यस सर। इधर है। हाँ सर। So next problem we start Laplace transform of t into exponential minus t sin t. Laplace transform sin t equal to 1 by s square plus 1. Laplace transform of t sin t equal to minus 1 d by ds 1 by s plus 1. 2s by s square plus 1 का whole square. t into sin exponential minus t sin t equal to ये मिलेगा, है ना। तो ये मिलेगा तुमको, देखो क्लियर है, बोलो डेरिवेटिव फॉर्मूला और लाप्लास ट्रांसफॉर्म sin t निकालो, उसके बाद 3 तो sin t डेरिवेटिव फॉर्मूला से ये निकलेगा, देखो आफ्टर दैट ये मिलेगा, एक्सपोनेंशियल लगाओ तो मिलेगा। क्लियर है, बोलो। सुमिरन कुमारी, संजय कुमारी, इधर है, जिशान अहमद, प्रियराज पांडे, बोलो कोई आने वाले स्टूडेंट।
Next is periodic function. What is periodic function? Let a function f t be periodic with period is omega, so that functions of t plus n omega, अगर n टाइम्स ऑफ periodic रहे तो क्या होगा, functions of t ही रहेगा, where n equal to 1 2 3 up to so and so, ठीक है. Then Laplace transform functions of t equal to 0 to omega exponential minus st ft dt divided by 1 minus exponential minus s omega, और ओमेगा क्या है, periodic function, ठीक है, period ओमेगा. इसका प्रूफ कैसे करेंगे, Laplace transform functions of t equal to 1 दिया हुआ है as given the question, कौन डेफिनेशन, ठीक है. इस डेफिनेशन को हम लोग सीरीज के फॉर्म में लिख सकते हैं. ये किधर है कि नहीं बोलो, ये लाइन किधर है कि नहीं है, बोलो. एनीवन स्टूडेंट बोलो, इसे किधर है. सर न्यूटन हेलो सर, लेबनिट्ज रूल लगा है ना. हाँ क्या बोला सर वहाँ फर्स्ट वाले न्यूटन लेबनिट्ज क्वेश्चन, रूल फर्स्ट लगा है वाले ना. लाइन में बोलो. बोल रहे हैं, फर्स्ट वाले लाइन में तो 0 to infinity है e to the power minus st ft dt. ये थोड़ा फॉर्मूला हो गया, बेसिक फॉर्मूला लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये बेसिक. यस सर. नेक्स्ट उसके बाद ये आ गया सिग्मा n इक्वल टू 0 to infinity, वहां से आया. ये सर कहाँ से आया, इंटीग्रेशन हाँ n प्लस ओमेगा. एक्चुअली देखो इनफाइनाइट है, एज ए डेफिनिट इंटीग्रल 0 to इनफाइनाइट, ठीक है. तो डेफिनिट इंटीग्रल को हम लोग, डेफिनिट इंटीग्रल क्या इंडिकेट करता है, डेफिनिट इंटीग्रल क्या इंडिकेट करता है, डेफिनिट इंटीग्रल इंडिकेट करता है सम ऑफ द सीरीज, समझ रहे हो. अब 0 to इनफाइनाइट का लिमिट है, इसमें वैल्यू क्या होना चाहिए, कोई सीरीज है, 0 से 1 गया, फिर 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, 3 से 4 गया, 4 to 5 गया, कहां तक जाएगा, अप टू इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है. डेफिनिट इंटीग्रल में इंडिकेट कर रहा है वह सम ऑफ द सीरीज को, तो सीरीज हम लोग ले 0 to इनफाइनाइट n इक्वल टू, ठीक है. आप यहाँ पर n का वैल्यू हम लोग 0 दोगे, n का वैल्यू 0 दोगे तो क्या मिलेगा, 0, ऊपर में क्या मिलेगा, ओमेगा. n इक्वल टू 1 दोगे क्या मिलेगा, ओमेगा और ओमेगा 2 ओमेगा, 2 ओमेगा. n इक्वल टू 3 मिलेगा तो क्या होगा, 2 दोगे तो क्या होगा, 2 ओमेगा into 3 ओमेगा, माने इस तरह से कंटिन्यूअस चल रहा है, ठीक है. बट इंटीग्रेशन जो है वो में ब्रेक हो गया, ठीक है, ये लिखा हुआ है सीरीज में. फिर इस इंटीग्रेशन को हम लोग ब्रेक करेंगे, इक्वल टू x प्लस n ओमेगा पुट कर दो, तब तक बड़ा इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा. देखो यस सर. ठीक है. फिर जो ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ब्रेक करो, इस पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन ब्रेक इट, देयर आर टू पार्ट्स, यस सर. ठीक है. आप देखो x प्लस n ओमेगा जो है एज ए पीरियोडिक फंक्शन में एफ एक्स ही होगा, ठीक है. ये तुम्हारा स्टेटमेंट में दिया हुआ है, ठीक है ना. उसको देखो ये चीज तुम्हारा कॉमन आ जाएगा, उसको तुम्हारा ये टर्म बचेगा, ठीक है. अब उसके बाद हम लोग देखो ये जो एक्सपोनेंशियल जो बन गया, ये इंटीग्रेशन तो ऑलरेडी है. अब ये सीरीज जो बन गया, इस सीरीज को एक्सपेंड कर दो इस फॉर्म में. अब इसको ब्रेक कर दोगे तो ये मिलेगा तुमको, देखो
सर एक लाइन और ऊपर कीजिए तो थोड़ा। बोलो ना। x। सर इसको हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर क्यों निकाल रहे? e टू द पावर माइनस n s ओमेगा। इंटीग्रेशन क्या विद रिस्पेक्ट टू एक्स है ना, इंटीग्रेशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू एक्स है ना, हाँ तो बाकी टर्म बाहर निकल जाएगा। हाँ तो इस हाँ x नहीं है इसलिए बाहर आ जाएगा। ठीक है। यस सर। अब ये फॉर्मूला इसको सीरीज को ब्रेक करके ये मिलेगा। अब ये देखो, ये जब इसको ब्रेक करके तुमको ये मिलेगा, क्लियर है। समझ में आ रहा है। प्रॉब्लम में देखो, ये फंक्शंस ऑफ टी इक्वल टी स्क्वायर और टी लाई विद 0 से 2, फंक्शंस ऑफ टी प्लस 2 इक्वल टू फंक्शंस ऑफ टी होगा, फाइंड लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शंस ऑफ टी। तो फंक्शंस ऑफ टी प्लस 2 इक्वल टू फंक्शन टी जब दिया हुआ था, हम समझ रहा है कि वो फंक्शन क्या पीरियोडिक फंक्शन है, वो पीरियड क्या है, पीरियड इज 2 दिया हुआ है। ठीक है, सो फंक्शंस ऑफ टी पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड इज 2। सो लैपलेस फंक्शंस ऑफ टी वी हैव, देखो इसको हम लोग पीरियोडिक फंक्शन में सजा दिए, देखो जो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बेस पे जो दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग फॉर्म क्वेश्चन 1 में इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दो। देखो ठीक है, और उसे ब्रेक करने के बाद लास्ट फाइनली वी हैव, देखो पूरा इक्वेशन सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा। किधर है बोलो। हम्म, किधर है एनीवन स्टूडेंट बोलो। सो फंक्शंस ऑफ टी वी हैव, ये एक्सपेंशन मिला तुमको है ना। किधर है कि नहीं बोलो एनीवन स्टूडेंट।
फिर से एक्सप्लेन किया जाएगा इसको, अगर किसी को दिक्कत है तो। So next is find the Laplace transform, prove that दिया हुआ है, तो 5/2 प्रूव करना, ठीक है ना। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन ऑफ टी का क्या आता है, 1/p+1। डेरिवेटिव फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये मिलेगा, देखो इसको हम लोग एक्सपेंड करो, ये मिलेगा cot इनवर्स p निकलेगा। cot इनवर्स p को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/p लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। उसको देखो इंटीग्रेशन को लगाएंगे हम लोग लेफ्ट साइड में, लाप्लास तो साइन ऑफ टी को हम लिख सकते हैं 0 to ∞ लिख सकते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में tan इनवर्स 1/p तो ऑलरेडी है। तो नेक्स्ट p इक्वल टू 0 पुट कर दो तो तुम्हारा इंटीग्रेशन ये π/2 प्रूव हो जाएगा। देखो क्लियर है, एनीवन स्टूडेंट बोलो। क्लियर है खुशबू कुमार, Yes, sir. मनीष कुमार, सोहेल अंसारी, यस सर। प्रियाराज पांडे क्लियर है,
यस सर। ठीक है रोहित कुमार। यस सर, क्लियर है।